Namaskar. I'm Shailaja Kaur, Assistant Teacher from Government Model Primary School, Kandoli, Raipur Block, Dehradun. I welcome you in this quest for knowledge. In today's session, we are going to enjoy a very funny story. This story is from NCERT textbook Marigold, Class 4, Subject English, Unit 3, and name of the story is Nasrudin'S Aim. This is part 1, where we are going to read the text only. The points we are going to discuss in this session are read the text, comprehend the text, learn new words. So, this picture shows you Unit 3, name of the chapter, Nasrudin'S Aim. And this is the picture of Nasrudin. So first we are going to read the text only. One day, Nasrudin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take aim, and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit right on target." Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Giving them to Nasrudin, he said, "Here, Nasrudin, take this bow and arrows." Then, pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." Nasrudin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target, and shot an arrow. Woo! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. Ha 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 ha! His friends started laughing. They said, "Hey, Nasrudin, is this your best aim?" "Oh no, not at all," said Nasrudin, defending himself. "This wasn't my aim. It was Azad's aim. I just showed you how Azad shoots an arrow." Saying this, Nasrudin picked up another arrow. Once again, he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. This time, the arrow fell a little further from where it had fallen before, but it certainly didn't hit the target. He asked Nasrudin, "And this must be how you shoot an arrow?" "Of course not," argued Nasrudin. "Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim." Now, somebody remarked, "Well, now who's next on the list?" Hearing this, all the friends burst out laughing. Nasrudin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow and again, and this time Nasrudin was really lucky. The arrow hit right on the target. Everybody stared at Nasrudin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasrudin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." So that is the story, Nasrudin'S Aim. So come, let's understand it. One day,
Nasruddin was chatting with his friends. Chatting means talking, बातचीत करना. One day, एक दिन नासरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहा था. He began to boast. Boast जब कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है अपने बारे में, जिसे डींग हाँकना भी कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, तो he began to boast. नासरुद्दीन बड़ी बड़ी बातें करने लगा अपने बारे में. No one can match my skill in archery. No one, कोई भी, match my skill in archery. Archery तीरंदाजी, आपने वो खेल देखा होगा. आर्चरी तीरंदाजी, जिसमें बो एंड एरो के साथ इस खेल को खेला जाता है. तो वो कहता है कि आर्चरी में तीरंदाजी में मेरे स्किल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. Nobody can match. कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता. मैं बहुत अच्छा हूं. I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh. वो कहता है I string the bow. मैं बो में स्ट्रिंग कसता हूं. Take aim. Aim आप देख सकते हैं, एम किसी लक्ष्य को कहते हैं. हम पहले भी अपने सेशंस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं न्यू वर्ड्स में. एम मतलब कोई टारगेट, लक्ष्य. तो मैं बो में स्ट्रिंग को कसता हूं, लक्ष्य निश्चित करता हूं, एंड शूट द एरो, और तीर चला देता हूं, तीर छोड़ देता हूं. Whoosh. The arrow is sure to hit right on target. एरो निश्चित रूप से टारगेट, लक्ष्य को ही सीधा हिट करता है, सीधा लक्ष्य पर ही लगता है. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Hearing this, यह सुनकर, one of his friends, उसके दोस्तों में से एक, immediately तत्काल, उसी समय, brought ले आया, a bow and some arrows, एक धनुष और कुछ तीर. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." Then, pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." Giving them to Nasruddin. Nasruddin को देते हुए, he said, वह बोला, "Here, Nasruddin, ये Nasruddin, take this bow and arrows." इस धनुष और तीरों को लो. Then, तब, pointing towards a target, किसी लक्ष्य की तरफ पॉइंट करते हुए, बताते हुए, दिखाते हुए, he said, वह बोला, "Aim at that target." उस टारगेट पर, उस जो चिन्ह है या जो कोई लक्ष्य है, उस पर आपको एम करना है. एंड शूट एन एरो, और अपने तीर को छोड़ो. तो इमीडिएटली उसका एक दोस्त बो एंड एरोज लेकर आ गया और उसे पॉइंट आउट करके एरोज को छोड़ने के लिए बोला. Nasruddin held the bow in his hands. नसरुद्दीन ने बो को, आप देख सकते हैं, दिस बो, ही हेल्ड द बो इन हिज हैंड. उसने अपने हाथ में बो लिया. स्ट्रंग इट, और जो उसका जो स्ट्रिंग या जो ये रोप कॉर्ड होता है, उसको कसा. एम्ड एट द टारगेट, लक्ष्य पर निशाना साधा. एंड शॉट एन एरो, और तीर छोड़ दिया. ट्रंक फिट अ स्ट्रिंग, जब हम इस धनुष में जो उसमें कॉर्ड लगी होती है उसको कसते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रंग. द एरो डिडंट हिट द टारगेट. एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया. इंस्टेड इसके बजाय, इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. इट फेल डाउन, ये गिर पड़ा
समवेयर इन द मिडल, बीच में ही कहीं पर, टारगेट तक ना जाकर वह बीच में ही कहीं पर तीर गिर पड़ा। हा 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 हा, his friends started laughing. उसके मित्रों ने हंसना शुरू कर दिया। They said, "Hey, Nasruddin, is this your best aim?" Best aim, सबसे बेहतरीन लक्ष्य। तो उन्होंने बोला, हे नसरुद्दीन, ये तुम्हारा सबसे बेस्ट एम है? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोला, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव करते हुए, डिफेंड करना, बचाव करना, प्रोटेक्ट करना। दिस वाज़न्ट माय एम, ये मेरा एम नहीं था। इट वॉज आजाद्स एम, ये तो आजाद का लक्ष्य था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो, मैं तो केवल तुम्हें शो कर रहा था, दिखा रहा था, दर्शा रहा था। हाउ आजाद शूट्स एन एरो, कि आजाद कैसे तीर छोड़ता है। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. यह कहते हुए, saying this, यह कहने के बाद, Nasruddin picked up, picked up उठाना किसी चीज को, another arrow, यह कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठा लिया। Once again, एक बार फिर, once again, एक बार फिर, he strung the bow, उसने धनुष पर उस कॉर्ड को अच्छे से टाइट किया। Aim at the target, लक्ष्य पर निशाना साधा। And shot the arrow, और तीर छोड़ दिया। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. This time, इस समय, the arrow fell a little further, थोड़ा और आगे गिरा, fell, गिरा, from where it had fallen before, before पहले, जहां वो पहले गिरा था उससे थोड़ा और आगे गिरा। Here, defending means protecting. Defending word, its meaning is protecting. तो हम देख रहे थे कि इस पैराग्राफ में वो दोबारा से ट्राई करता है, but again he didn't get success. But it certainly didn't hit the target. लेकिन it certainly, surely didn't hit the target. वो बीच में कहीं गिरा, बीच, लेकिन पहले अटेम्प्ट से थोड़ा और आगे, लेकिन surely उसने टारगेट को बिल्कुल हिट नहीं किया। They asked Nasruddin, उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, and this must be how you shoot an arrow, और इस तरह से क्या तुम एरो को शूट करते हो? क्या यही तरीका है जिससे तुम एरो को शूट करते हो? Of course not, बिल्कुल नहीं, argued नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने तर्क दिया। जब हम अपने आप को डिफेंड करते हुए कुछ बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो उसी तरह से नसरुद्दीन ने भी बोला, of course not, even this aim was not mine, यहां तक कि इवन, यहां तक कि ये लक्ष्य भी मेरा नहीं था। It was चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड, मुख्य अंगरक्षक, तो रक्षक वहां पर है, उनमें से चीफ गार्ड का एम है, ये चीफ गार्ड का एम था। Now somebody remarked, well, now who's next on the list? Now, अब somebody remarked, किसी ने remark दिया यानी कुछ बोला। Well, अच्छा, now who is next? अब अगला कौन है on the list? इस सूची में, इस लिस्ट में अगला नाम किसका होगा? क्योंकि उसने लगातार 2 बार बोला, ये आजाद का था और ये चीफ जो गार्ड है उनका लक्ष्य था। Hearing this, all the friends burst out laughing. Hearing this, यह सुनकर all the friends, सारे के सारे दोस्त ठहाके मारकर, burst out laughing, ठहाके मारकर हंसने लगे।
Nasruddin didn't say a word. Nasruddin एक भी शब्द नहीं बोला. He quietly picked up one more arrow. Quietly, शांति से, चुपचाप. Picked up, उठाता है. One more arrow. वह चुपचाप एक और तीर उठाता है. And again, और फिर पुनः. आपको मालूम ही है कि इस प्रोसेस में वो 3 चीजें करता है. Point out the target, strung the bow and shoot the arrow. तो वो तीनों चीजों को करता है. And this time, और इस बार, नासरुद्दीन was really lucky. नासरुद्दीन वास्तव में भाग्यशाली था. The arrow hit the right on the target. वो तीर सीधा निशाने पर लगा. Everybody stared at Nasruddin. Stared, घूरना, लगातार देखना. Everybody stared at Nasruddin. हर एक नासरुद्दीन को देखने लगा. Their mouth agape in amazement. आश्चर्य से उनके मुंह खुले रह गए. Before anyone could say anything. इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता. Nasruddin said triumphantly. नासरुद्दीन ने विजेता के रूप में कहा. Did you see that? क्या तुमने ये देखा? It was my aim. ये मेरा एम, मेरा लक्ष्य था. तो बड़ी triumphantly, विजेता के रूप में triumphantly means having achieved victory, जिसको विजय प्राप्त हो जाए, जो सक्सेस जिसको मिल जाए. तो इस तरह से नासरुद्दीन बोला. Did you see that? क्या तुमने देखा? It was my aim. ये मेरा लक्ष्य था. So this was the funny story of Nasrudin's aim. The new words you learned in this text are chatting. आपको मालूम ही है chatting हमने अभी पढ़ा. बातचीत करना, archery, तीरंदाजी, string, जो cord होती है उसको string कहा जाता है. Target, aim, defending, बचाव, amazement, मनोरंजन या आश्चर्य होना, triumphantly, विजेता, success, to getting success. Now, there are 2 more. इस चैप्टर के साथ एक कॉमिक स्ट्रिप भी दी गई है. आइए इसको भी एंजॉय करते हैं. So, this comic strip, कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे कॉमिक स्ट्रिप बहुत सारी कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ा करते हैं बचपन में. और पहले ऐसी बुक्स बहुत आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम हुई. सोशल मीडिया में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे. तो ये एक कॉमिक स्ट्रिप दी गई है. लेट्स एंजॉय इट. नासरुद्दीन हुजा. One day, the king forced Nasruddin Huza to go on a hunt with him. You can see this picture. This is king. This one, Nasruddin. एक दिन, one day, the king forced Nasruddin Huza to go on a hunt. शिकार, hunt, शिकार. किंग ने नासरुद्दीन हुजा को अपने साथ शिकार में जाने के लिए जोर दिया. When the hunting party returned in the evening, जब हंटिंग के लिए गई हुई पार्टी, वो शिकार के लिए गए हुए सब लोग इवनिंग में वापस आए. रिटर्न, वापस आए. तो ये उनका कॉन्वर्सेशन है किंग एंड नासरुद्दीन का. तो किंग ने पूछा, हाउ डिड द हंट गो? शिकार कैसा रहा? नासरुद्दीन, इट वॉज वंडरफुल. ये अद्भुत था, बहुत मजेदार था. नाउ अगेन किंग आस्क्ड, डिड यू किल एनी एनिमल? क्या तुमने किसी जानवर का शिकार किया? नासरुद्दीन. So Nasrudin answered, no, नहीं. Again king asked, did you chase any animal? क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया? Nasrudin says, no. Third time king asked, did you see any animal? क्या तुमने किसी जानवर को देखा? No. Again Nasrudin said, no. King, then why do you say the hunt was wonderful?
अब किंग को आश्चर्य होता है कि उसने ना तो चेज किया, ना किसी को देखा, ना किसी को मारा, तो व्हाई सेइंग इट वाज वंडरफुल? देन Nasruddin answered, "Oh my dear, when you go to hunt such dangerous animals, it is always marvelous not to come across any." Oh my dear, वो किंग से बोलता है, when you go to hunt such dangerous animals, जब आप इतने खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए जाते हैं, it is always marvelous, ये बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ी बात है, not to come across any, आप इनका सामना ना करें. तो it is a funny story कि although king forced him to take with him, और उनको शायद ये पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो साथ में जाते हैं और किंग को वो बड़े फनी मैनर से ये जवाब देते हैं. और किंग को बड़ा आश्चर्य होता है कि ना तो उन्होंने मारा, ना उन्होंने पीछा किया, ना देखा ही नहीं किसी ऐसे जानवर को, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि शिकार में बहुत मजे आए. तो नसरुद्दीन का आंसर, इट्स वेरी क्लेवर आंसर, कि भाई मैं बच गया, कि इतने खतरनाक जानवरों का आप पीछा कर रहे हैं लेकिन आपके सामने कोई नहीं आया, मतलब मैं बच गया. तो it was the answer and it's a comic strip. Now next is be a Nasruddin Hoja yourself. आप भी नसरुद्दीन हुजा की तरह कुछ इस तरह के रोचक जवाब या कुछ ऐसा कह सकते हैं, बता सकते हैं. There is a strip. There are 3 pictures in this strip. In the first picture, आप देख सकते हैं an old lady is here on the stairs. She falls down. A boy is there to help her, and he's asking, "Are you hurt?" जो बुजुर्ग महिला है ये सीढ़ियों में चढ़ रही है, वो गिर पड़ी. आप देख सकते हैं उनकी स्टिक और उनके स्पेक्टिकल्स भी गिर जाते हैं, और ये बच्चा उनको मदद करता है और पूछ भी रहा है, "Are you hurt?" क्या आपको कहीं लग तो नहीं गई या कहीं चोट तो नहीं लगी है? So there is this sentence. What would you have done if your grandmother slipped? अगर आपकी दादी जी या नानी जी ऐसे स्लिप हो जाती तो आपने क्या किया होता? तो this is a very natural thing and this is a very right thing. The way the boy helped this old lady. और अगर यहाँ पर नसरुद्दीन होजा होते तो शायद वो कैसे जवाब देते, वो क्या करते, तो आपको यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना है. नेक्स्ट योर होम असाइनमेंट. लिस्ट सम फेमस इंडियन आर्चर्स एंड कलेक्ट देयर पिक्चर ऑल्सो. दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू. हम बहुत सारे गेम्स के स्टार्स को जानते हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, और लेकिन बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके जो स्टार्स हैं या जिनके जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है, उन स्पोर्ट्स पर्सन को हम नहीं जानते. फॉर एग्जाम्पल चेस के हम विश्वनाथन आनंद जी को जानते हैं, और इसी तरह से कुछ कुछ गिने चुने नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे गेम्स, स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके स्पोर्ट्स पर्सन को हम नहीं जानते. सो हियर देयर इज अ चांस फॉर यू. You just find out some Indian famous archers, list them, collect their picture also. So, in this session, the points we discussed are: we read the text, comprehended the text, and learned new words. So, this was our today's session with a funny story, Nasrudin's Aim. Hope you have enjoyed the chapter. See you again. Thank you.